Hello friends. In caring for a child following accidental ingestion acetaminophen, which laboratory value should the nurse monitor closely for changes in the child health status? एक चाइल्ड है जिसने एसिटामिनोफेन का इंजेक्शन कर लिया है, कौन सी लेबोरेटरी वैल्यूज़ को जो नर्स है फर्स्ट मॉनिटर करेगी? हीमोग्लोबिन या हीमेटोक्रिट, वाइट ब्लड सेल काउंट, डिफरेंशियल काउंट, ब्लड गैसेज, सीरम ट्रांसमिनेज लेवल। तो सीरम ट्रांसमिनेज लेवल को क्लोजली मॉनिटर करेगी। एसिटामिनोफेन जो है पैरासीटामोल एक ड्रग होती है जिसको हम एंटीपायरेटिक, एनाल्जेसिक और एंटी इन्फ्लामेटरी के लिए यूज़ करते हैं। हाई डोजेज ऑफ पैरासीटामोल के कारण लीवर के अंदर नेक्रोसिस हो सकता है, वो इसको प्रोलॉन्ग टाइम तक यूज़ करने के कारण होता है। ओवरडोज ऑफ पैरासीटामोल इन चिल्ड्रन लेस देन 10 ईयर may cause injury and necrosis of the liver and hepatic failure. सो सीरम या CEO की जगह सो है, सो सीरम ट्रांसमिनेज लेवल शुड चेक रेगुलर टू असेस लीवर फंक्शंस फॉर क्रोनिक यूजर पैरासीटामोल क्लाइंट। कोई भी ऐसा क्लाइंट जब क्रोनिकली पैरासीटामोल का इंजेक्शन करता है तो उसमें जो है सीरम ट्रांसमिनेज लेवल का चेकिंग रेगुलरली होनी चाहिए। Question number second. What would you monitor in a patient taking high dose of PCM over a prolonged period? Prothrombin time, GI irritation, liver function, and kidney function. So simple, liver function. 3. Which of the following is most common side effect of aspirin? Gastrointestinal bleeding, constipation, nystagmus, and urinary incontinence. So side effect of aspirin is gastrointestinal bleeding. Aspirin chemical name is acetyl cyclic acid. Is one of the most widely used and prescribed analgesic, antipyretic, anti-inflammatory, and antiplatelet agents, and it prolonged blood clotting time. ये blood clotting time को बढ़ाता है। Which of the following drug has highest toxicity to a client? कौन सी ड्रग है जो हाईएस्ट टॉक्सिसिटी करती है? साल्बिटामोल, रिसाइक्लिंग एंटी डिप्रेसेंट, पैरासीटामोल और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। पैरासीटामोल जो है बहुत ही हाईएस्ट टॉक्सिसिटी करती है। द पैरासीटामोल इज नॉट given to those patients who are already suffering from liver disorder, kidney disorder, lung disorder, and GIT disorder. So paracetamol is not given to the liver disorder client. PCM is a antipyretic. Which symptoms of aspirin toxicity should be checked by nurse? एस्पिरिन टॉक्सिसिटी का क्या सिम्टम्स हैं? हाइपरटेंशन, डिजीनेस, पिंक यूरिन एंड ड्राउजीनेस. So right answer is pink urine. Long-term use of large dose may cause decreased synthesis of blood clotting factor in liver and prevent the platelet adhesiveness to increase the chances of bleeding that like gastrointestinal bleeding and GIT bleeding causes pink color urine. लॉन्ग टर्म एस्प्रिन का यूज़ करने से ब्लड जो क्लोटिंग पावर है वह कम हो जाती है, लीवर के अंदर से क्लोटिंग फैक्टर्स की कमी हो जाती है जिस कारण जो है प्लेटलेट की एडेसिवनेस कम होती है एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल के ब्लीडिंग के चांस बढ़ते हैं, जेनाइटो यूरिनरी ब्लीडिंग के चांस बढ़ते हैं जिससे कि पिंक कलर यूरिन कोज होता है। फंक्शन ऑफ एस्प्रिन, एस्प्रिन का क्या फंक्शन है? एनाल्जेसिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी प्लेटलेट या फिर ऑल ऑफ द अबव? तो all of the above. What is the chemical name of aspirin? Acetyl salicylic acid, acetyl cyclic acid, acetone salicylic acid या फिर amide salicylic acid. Chemical name of aspirin is acetyl salicylic acid. Big symptoms of salicylic toxicity in a patient noted by first dizziness, drowsiness, tinnitus, and none of the above. So tinnitus is the big symptom. Nausea, vomiting and diaphoresis are the earliest sign of salicylic toxic
साइन इन एक्यूट पॉइजनिंग आर माइल्ड lethargic, convulsion, sweating, dehydration, hyperapnea, hyperthermia, and restlessness may be present. In chronic poison, skin rashes, tinnitus, bleeding, weight loss, mental symptoms may present. Drug used to relieve pain as termed as analgesic. Which of the following is first line drug used to pain management? Ketamine, acetaminophen, clonidine, morphine. So, first line of pain management we will use acetaminophen. 13 number question. A client with rheumatoid arthritis is receiving ibuprofen. Which statement would indicate that client has correct understanding of ibuprofen? I should take the medicine between meals. The medicine will increase my appetite. The medicine may cause diarrhea. I should stop the medicine if my joints start to swell. So right answer is I should take the medicine between meals. All NSAIDs, including ibuprofen, increase the risk of gastrointestinal bleeding and ulceration, so the patient should be cautioned not to take any NSAIDs on empty stomach, but rather than milk, a meal और एंटासिड. जो NSAID ड्रग्स होती हैं आइबुप्रोफिन वो है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ाती है, अल्सरेशन के चांसेस बढ़ाती है, जो कि पेशेंट को क्वेश्चन रखना चाहिए कि जो NSAID ड्रग्स हैं उनको एम्प्टी स्टमक में नहीं लेना चाहिए, मिल्क के साथ, मील के साथ या फिर एंटासिड के साथ ही लेना चाहिए. A patient receiving codeine sulfate for severe back pain, which of the following observation must be done by nurse? Monitor fluid balance, monitor bowel activities, monitor peripheral pulse, monitor hypertension. एक पेशेंट कोडाइन सल्फेट ले रहा है सीवियर बैक पेन के लिए, नर्स उसमें कौन सा ऑब्जर्वेशन करेगी? नर्स उसमें मॉनिटर बाउल एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करेगी. कॉन्स्टिपेशन ड्यू टू डिक्रीज बाउल मोटिलिटी इज प्रोमिनेंट साइड इफेक्ट ऑफ कोडाइन सल्फेट. कोडाइन सल्फेट का प्रोमिनेंट साइड इफेक्ट क्या है? कॉन्स्टिपेशन. कॉन्स्टिपेशन क्यों हो रहा है इसमें? क्योंकि इससे बाउल एक्टिविटीज़ कम हो जाती है. व्हेन इट यूज एज एनाल्जेसिक, दैट्स वाई कोडाइन सल्फेट इज ऑल्सो यूज टू कंट्रोल डायरिया. इसलिए इसका यूज़ डायरिया में भी होता है क्योंकि ये कॉन्स्टिपेशन कोज करती है. अदर साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वह डिजीनेस, लाइट हेडेकनेस, नोजिया, स्वीटिंग, वोमिटिंग, टायर्डनेस. विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज नॉट यूज टू एंटी इमेटिक आफ्टर रिकवरी फ्रॉम एनेस्थेसिया? एंटी इमेटिक के तौर पे हम यूज़ नहीं कर सकते एनेस्थेसिया से रिकवर होने के बाद पेशेंट को. एवोमाइन, largacetylstamine, स्टेमिल एंड पैथिडाइन. So correct answer is pethidine. It is a synthetic opioid used to relieve severe pain, not as anti-emetic. Morphine belongs to one of the following of drugs: belladonna, alkaloids, anticholinergic, opioids, barbiturates. Opioids. Opioids means any natural substance that comes or derived from opium like morphine, codeine and cocaine. Opioids क्या होते हैं? नेचुरल सब्सटेंस होते हैं जो कि ओपियम से डिराइव होते हैं. An example of synthetic narcotic include all of the following asset. सिंथेटिक नारकोटिक के ये सभी एग्जाम्पल्स है, सिर्फ एक को छोड़ के: डायलोडिन, लर्टाइन, मॉर्फिन, टालविन. तो इसमें मॉर्फिन है जो इसका एग्जाम्पल नहीं है. मॉर्फिन क्या है? सिंथेटिक नहीं होकर नेचुरल नारकोटिक्स है. मॉर्फिन शुड बी यूज इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन? शुड नॉट बी यूज. मॉर्फिन क्या है? किस कंडीशन में नहीं दिया जाता? पल्मोनरी एडीमा में, एंजाइना में, कार्डियक अस्थमा में या फिर ब्रोंकियल अस्थमा में. तो मॉर्फिन जो है ब्रोंकियल अस्थमा में नहीं दिया जाता क्योंकि मॉर्फिन जो है रेस्पिरेटरी सेंटर को सप्रेस करता है, जबकि ब्रोंकियल अस्थमा में पहले ही O2 जो है कम पहुंचती है लंग्स तक, तो
ऐसी सिचुएशन में मॉर्फिन को अवॉइड करना चाहिए और इसको एक्यूट पेनक्रेटाइटिस में भी प्रिकॉशंस के साथ ही देना चाहिए। आफ्टर मॉर्फिन एडमिनिस्ट्रेशन नर्स शुड क्लोजली ऑब्जर्व विच ऑफ द फॉलोइंग। मॉर्फिन एडमिनिस्ट्रेशन के बाद में नर्स कौन सी फॉलोइंग को ऑब्जर्व करेगी क्लोजली? नोजिया, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, कॉन्स्टिपेशन, रेस्टलेसनेस। आंसर रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। क्वेश्चन नंबर 20, विच ड्रग कोज साइड इफेक्ट रेफर्ड एज ग्रे बेबी न्यूनेट। ग्रे बेबी न्यूनेट कौन सी ड्रग के कारण होता है? क्लोरामफेनिकोल, अमीकासिन, एमजीएसओ4, ऑक्सोटॉक्सिन। तो ये आंसर सभी को आता है क्लोरामफेनिकोल।